News coming in. The Maharashtra government has ordered the formation of an SIT, a special investigation tribunal, in the Badlapur case. Internet has been shut down in Badlapur in the wake of those violent protests on the ground. The Maharashtra Education Minister Deepak Kesarkar will also meet the parents of the children involved in this case. That is the big piece of news that's coming in given the unrest on the ground and the simmering tensions in Badlapur. I'm joined by my colleague Mayuresh on the broadcast. So Mayuresh, given the fact that this is a clear move coming in from the Maharashtra government to douse tensions on the ground, what is the latest from Ground Zero? I've been given to understand that the internet service in the Badlapur area, or we can say Badlapur town, has been suspended because if you see that the way the protest had happened, so the government somewhere feels that on social media such videos should not get viral, which will instigate the crowd again, and the crowd will come again at the various locations in the city and start protesting. Second thing is that that the government has set up an SIT. That SIT will be led by a senior IPS officer, Aarti Singh. She will be leading that, and also this particular case will be now played in the fast track court. And Ujjwal Nikam, who's a senior advocate and senior lawyer, he has been appointed by the state government as a special public prosecutor who will represent the victims in the court. Right, so Ujjwal Nikam will be the public prosecutor in this case, a man famous for the 2611 trial. Mayuresh, before I let you go, decode for us the level of deployment on the ground given the fact that tensions persist. Yes, obviously the Maharashtra police teams are there right now because they don't want to take any chance because tomorrow on 21st, the bail of, I beg your pardon, the custody of the accused is getting over. So again, the police will ask for his custody. Another thing is that the railway police is also protecting the Badlapur station so that the protesters should not come there again and do the things which they did. That is do the protests on the railway track so that it will halt the entire operation. Because if you remember, for more than 10 hours, the entire operation of Central Railway between Badlapur station, or we can say between Kalyan and Karjat, was halted. Many outstation trains were diverted from other routes towards Mumbai. So a lot of people or a lot of commuters were stranded on different railway stations for a longer period. So that's why the railway police has made sure that this should not happen. That's why railway police deployment is there. And also Maharashtra police deployment is there in the Badlapur city because they don't want a repeat telecast of today to happen tomorrow. Right, so extensive deployment on the ground to contain the situation, at the same time to prevent any rumor mongering, to any false rumors being spread in the area. Internet has been shut down in Badlapur. And now what we are learning, as my colleague Mayuresh was pointing out, Ujjwal Nikam, a man famous for the 2611 trial, has been appointed as the special prosecutor in this case. Thank you, Mayuresh, for getting us the latest. Let's get to more reactions coming in from Ground Zero. पुलिस और जो आंदोलन करते हैं उनमें बातचीत चालू है। लगभग 4 से 5 बार ये बातचीत हो रही थी, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो कोई भी लोग जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे लोगों ने पथराव किया था क्योंकि पुलिसों ने जो है लाठीचार्ज किया लोगों पे, और उसके चलते लोगों का गुस्सा जो है वो उमड़ा, और लोगों ने जो रेलवे ट्रैक पे जो पत्थर है, उनके हाथ में जो बोतल है, वो पूरी तरह से जो पुलिस है उनकी तरफ फेंकी थी। लेकिन पुलिस के पास उनका बचाव करने के लिए पूरे साहित्य है, लेकिन उसके ये पथराव के चलते 4 से 5 जो यहाँ के जो आंदोलन करते वो जख्मी हुए। मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ। ये बदलापुर के जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक निजी स्कूल है। उस स्कूल में 10 दिन के भीतर एक 4 साल की लड़की और एक 6 साल की लड़की, इन दोनों पर दुष्कर्म किया गया, और एक वहाँ का वॉचमैन जो है उसने दुष्कर्म किया, ऐसा लोगों का आरोप है, ऐसा लोगों का कहना है। और उसी के चलते यहाँ पे लोगों ने जो है पुलिस से मांग की थी कि आरोपियों पे कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन पुलिस लोगों ने पूरी जांच वो होने दी, उसके बाद में कोई कार्रवाई की नहीं, ऐसा लोगों का आरोप है। और उसी के चलते लोगों ने सोशल मीडिया पे एक कैंपेन किया, और सोशल मीडिया के कैंपेन के माध्यम से लोगों ने बदलापुर बंद का ऐलान किया था, और बदलापुर बंद जो है वो आज सुबह किया गया था। देखिए, लोगों के में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए यही वजह कि बदलापुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर वो पहुँच चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा विजुअल्स कि रेलवे ट्रैक पर किस तरीके से
जो पब्लिक है वो रेलवे ट्रैक पर बैठ चुकी है। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। यही वजह है कि जो लोग हैं यहाँ पर जो भीड़ है वो इकट्ठी हो चुकी है। अगर मैं कैमरामैन कल्पेश को बोलूँगा, ये देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो रेलवे ट्रैक पर खड़े हुए हैं और जिस तरीके से बारिश भी हो रही है पिछले 5 घंटे से ये सेंट्रल रेलवे का जो रेलवे ट्रैक है पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रेलवे ट्रैक को हट जाए, रेलवे ट्रैक को शुरू होने दें, क्योंकि मुंबई में अभी ऑफिस से छुट्टी का टाइम है तो शाम के वक्त बहुत सारी पब्लिक जो है वो ऑफिस से घर पहुँचती है और ऐसे में सेंट्रल रूट पूरी तरह से बंद हो जाने में बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ होगी। इसलिए मंत्री जो है गिरीश महाजन पूरी कन्विंस करने की कोशिश करें लोगों को, वो रेलवे ट्रैक को क्लियर कर दे ताकि रेलवे का ऑपरेशन शुरू हो सके। ट्रैक से हटोगे नहीं? नहीं हटेंगे जब तक फांसी मिलेगी तब तक हटेंगे नहीं। पूरा दिन फांसी मिलनी चाहिए हमको, इतना बड़ा किया है तो फांसी तो मिलनी चाहिए। कब तक जाएंगे? खड़ा करो इधर। बदलापुर की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहां पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहां के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा यह प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। आणि या घटनेला जे कोणी गुन्हेगार जबाबदार असतील त्यांना तर लवकरात लवकर केस चालवून मग ते फास्ट ट्रॅक म्हणा किंवा काही म्हणा, आपल्याला अनुभव आहे की गेल्या काही वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये निर्भया कांड झालं होतं। निर्भयाचे सगळे आरोपी पकडले, गुन्हे साबित झाले, पण किती वर्षांनी त्यांना फाशी दिलं गेलं आणि मग ह्या सगळ्या दिरंगाईला जबाबदार कोण? जेवढे एखाद्या महिलेवरती अत्याचार करणारे गुन्हेगार हे त्या घटनेसाठी जबाबदार असतात, तसंच त्याचा न्याय निवाडा करून त्याच्यावरती शिक्षेची अंमलबजावणी करायला दिरंगाई करणारे सुद्धा जबाबदार धरले पाहिजेत। हे जर का झालं तर आणि तरच अशा गोष्टीला आळा बसेल। फक्त मी एवढंच म्हणेन की अशा घटनेचं राजकारण न करता, जसं आता हाथरस पुलाव, त्याच्यानंतर राजस्थानमध्ये काही घडलं, आता बदलापूरमध्ये घडलं, अगदी कुठेही काही घडलं तरी ते सुट्टा कामा नये। सगळेजण पक्षभेद जातपात विसरून एकत्र झाले तर आणि तरच आपल्या देशातल्या आणि राज्यातल्या महिला सुरक्षित राहतील आणि तरच आपण म्हणू शकतो की माझ्या राज्यातली महिला ही माझी बहीण आहे, माझी लाडकी बहीण। And shifting focus, even as former Prime Minister of Bangladesh Sheikh